Festival, incluso all'interno del contenitore altre storie. This afternoon there will be a meeting between 4 film festivals, a large doc film festival, which is an Arab and Palestinian film festival, Lago Film Festival. Viviana, she hosts the festival from 22 years in Veneto. Then there will be a festival from Cagliari, Punto di Vista Film Festival, and Innsbruck Natur Film Festival, hosted by Johan Kostenser from 22 years. So I let me introduce the mayor of Villanova Forum, why we are here, because it is important. Thank you. Va bene, come ha detto Massimiliano, io sono il sindaco di Villanova Forum, mi chiamo Maurizio. I'm the mayor of Villanova Forum, my name is Maurizio. Come sindaco di Villanova Forum sono anche il vostro sindaco perché voi siete residenti a Villanova Forum. I'm also your mayor because you are resident, you live here. Ho vissuto quasi 30 anni fuori dalla Sardegna. I was living 30 years out of Sardinia. Quindi ho fatto anche io una certa esperienza di migrazioni e da migrante. So he was doing also an experience as a migrant from the Sardinia to Milan because he was living 30 years in Milan. E naturalmente mi sono accorto che se nel posto in cui andiamo ci accolgono bene, le cose diventano tutte più facili. So if the place where I'm going to be, they give me the chance to have a normal life like every human being. So it's important. So as a migrant is talking our mayor, so it's important. Quando sono venuto a vivere qui 10 anni fa non avrei mai immaginato che un giorno ci sarebbe stato in piazza un incontro tra migranti che vengono dall'altro capo del mondo e un regista che viene dall'altro capo del mondo. È un attore, Charles, non è un regista, comunque non è un problema. Ripeto quello che hai detto perché siccome non c'è nessuno, ripeto. I would never imagine that I was doing a meeting as a mayor of Villanova Forum with migrants on the church of Villanova Forum. So, with an actor from Bollywood that speaks Hindi properly, Bengali, Urdu. So there's a real cultural mediation because the cultural mediation is there. So you need to speak your own language to understand better. E quindi non posso che augurarvi di fare una bella chiacchierata. So I think it will be a wonderful conversation between you and Charles. Thank you. Thank you. Voce? No, la voce, mettila un po' più vicino. Oggi è la giornata mondiale del rifugiato. Today is the World Refugee Day. Questa è la migliore occasione per avere uno scambio con Charles. The best occasion to have a conversation with Charles. E con l'occasione raccontarvi e ascoltare le esperienze. Yes, to explain your needs and listen his experience, because also Charles was living in the streets of India, in Bihar, which is, I think, the most poor region of the country. Quindi lascio la parola a Charles e a voi. So I will leave everything to Charles now, and thank you. Buongiorno, इतना हम जानते हैं और मुझे भी जब मैं बात करेंगे मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलना पड़ता है क्योंकि ये सब भी जानना चाहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. तो what I will explain now is a little story of a Muslim boy that I met in the IT capital of India. मेरे गुरुग्राम एक जगह है हिंदुस्तान में और वहाँ IT को बहुत मशहूर है और मैं एक ऐसे इंसान है I'm a person of that nature that wherever I go I smile. तो एक छोटा सा लड़का मेरे सामने में आता था. A little boy used to come in front of me and I used to go Assalamu alaikum to him because I understood he was Muslim and he used to say namaste to me. हम लोग दोनों खुश.
सो एक दिन हमें मेट्रो में बैठ गया और ये मेरे बगल में बैठ गया और हम लोग 1 घंटा मेट्रो में जा रहे हैं. So one day I'm sitting on the metro and by chance this boy is sitting next to me and for 1 hour he's traveling with me. So I learned his story and his story is about without documents. वो लड़का का कहानी है बिना डॉक्यूमेंट वाला है. तो मैं देख लिया कि आप लोग डॉक्यूमेंट के पीछे में परेशान है. ये कहानी बहुत सुंदर है. So what happened to this boy? He told me his story. His story was simple. उनका पापा नहीं था. उनको 6, 7, 8 माँ था और 6, 7, 8 भाई बहन. तो ये लोग बहुत गरीब थे. तो माँ ये छोटे से लड़का उठा करके एक किसी के घर में गई थी और वहाँ पर बर्तन दर सफाई करता था, खाना बनाता था. So this little boy was just because he had no father. There's 7, 8 little children and the mother couldn't do anything. She gave this boy to one house. He cleaned the pots and made the food. ठीक है. तो ये उस घर में उसके पास कोई कागज नहीं है. So this is a boy living in India. Even though he's an Indian, he's entitled for every piece of paper. Because of his circumstances, he has no papers. ठीक है. लेकिन उसका अंदर में भाव है, दम है, खुशी है. और वो क्या करता था? उसके पास 2 मोबाइल फोन है. और ये अभी 10-12 साल पहले. This is a story of 12 years ago, not of today. तो वो लड़का क्या करता था? वो ऑनलाइन वो YouTube में जाकर के सीख लेते कि ऑनलाइन परचेस कैसे होता है. So what he did was he told all of his friends. वो सब अपना दोस्त को बोला जब भी तुम कुछ खरीदेंगे, when you're going to buy something in the market, first come to me. वो ऑनलाइन सर्च करके उससे सस्ता मिलता था. उसमें 100 रुपये लगाता था. So he would find the thing cheaper and he would put 100 rupees on, still it was cheaper, and he would buy for them. तो वो घर में पैसे बना रहा है. उसका स्वप्न था. He had a dream. He wanted a motorcycle and he's only 16. तो वो क्या किया ना, ऑनलाइन से मोटरसाइकिल खरीद दिया और घर में लेके आया. ठीक है. घर में जब लेके आया, when he bought this motorcycle and brought to the home, the lady of the home said to him, no, you have no license. आप इसको चला नहीं सकता है. तो वो फिर ऑनलाइन जा करके उसको भेज दिया और पैसे बना दिया. तो आप लोग को अभी आप लोग के पास एक चीज है, समय. At the moment you have one big opportunity, you have a lot of spare time. उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? वो है YouTube. अपना बकवास उसमें मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो. If you look at it carefully, anything that you would like to learn, सीख सकता है ना और आगे बढ़ सकता है. एक और एग्जाम्पल देता है. हमारा एक दोस्त है, वो थाईलैंड का लेडीज है. वो एक ऑस्ट्रेलियन से शादी की. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है. वो फल कटवाना में बहुत मजेदार है ना. फल को बहुत सुंदर बना सकते हैं ना, बहुत सुंदर. तो वो एक YouTube चैनल बना दिया. So this Thai lady in Australia, she's staying at home all day. Husband is doing all the work, but she can cut vegetables and she can cut fruit beautifully. तो वो YouTube चैनल बनाया. उसको 5 million, 10 million, हर एक 5-star शेफ पूरा दुनिया में उसका चैनल देखता है. उसको रेवेन्यू मिल रहा है. तो आज हम लोग एक ऐसा दुनिया में है ना सोशल मीडिया का, यहाँ बैठ करके भी आप काम कर सकता है, बिना से किसी से पूछ सकते, सीख सकता है. तो ठीक है, ये छोटा कहानी है. दिस इज अ लिटिल स्टोरी. आप मैं चाहता है कि कोई भी प्रश्न, क्योंकि आप मेरे बात समझिए, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ. मैं भी 13 साल से अपने देश, ठीक है मेरे देश है वो गरीब वो उलट वाला है, लेकिन मैं भी पूरा संसार घुमा है. तो आप लोग का मन में कोई प्रश्न है जो कोई पूछ नहीं सकता है और हो सकता है मैं आपको मदद दे सकता है, पूछ लो. So maybe we can give a microphone now so they can ask questions. Yes. So can somebody put up their hand? डरना नहीं है. आप हिंदी में बोल रहे, उर्दू में बोल रहे, कोई समझ नहीं है. तो हाथ उठाओ, किसको प्रश्न पूछना? किसी के पास है प्रश्न? ऐसे मत करो बाबू, डरो मत. किसी को कुछ पूछो, हाथ उठाओ. एक व्यक्ति हाथ उठाओ. कहाँ सब समा रहा है? हाँ, हाथ उठाना. हाँ, अरे प्रश्न पूछो. अस्सलाम वालेकुम. अलैकुम अस्सलाम. मेरा भी यूट्यूब चैनल है. मैं उस पर काम करता हूँ, लेकिन मेरा जो ड्रीम है वो यही है कि मतलब मैं अपने बल पे खड़ा होकर अपने घर वालों के लिए मतलब कुछ कर सकूँ, अपने वालिदैन के लिए कुछ कर सकूँ. और यही मेरी हर परदेसी मुसलमान भाई का यही मतलब होता है कि अपने ज़िंदगी जो अपना फ्यूचर है वो अच्छा बना सके. शुक्रिया. So he's just explained to me
that he has his own YouTube channel, which is amazing. And he's on a journey of that YouTube channel, and he wants to help others in his situation. So I'll give him a little advice in Hindi about YouTubers. ये जो आप कर रहे हैं ना, मैं आपको समझाना चाहता है, मैंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हिंदुस्तान में, उसका नाम है जॉश फोर्स। उसमें हर महीने में 100 मिलियन 150 मिलियन व्यूज होता है। उसमें ये दिखलाता है कि जो व्यक्ति सबसे गरीब ऊपर पहुंच गया 10 मिनट में वो समझाना पड़ा। मेरे समझ में आप अपने YouTube चैनल में ये सारा लोग जो है ना, आप उसको पास जा सकता है और बोल सकते हैं कि चलो 10 मिनट में आप समझाओ कि आपका कहानी क्या है और यहाँ क्या खुशी है। और ये जो है ना सारा बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान वो जानना चाहता है ना, क्योंकि आप अकेला नहीं है, लाख लाख बच्चा है जिसको नौकरी नहीं है ना वहाँ पर, वो भी आना चाहता है। So I'm explaining to him that he can self-interview his colleagues here and find out their good stories and share their experience of their journey, and that might inspire and help others. है कि नहीं? बढ़िया है ना? चलो ये एक प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न, चलो मुझे सबको देख करके बोलना पड़ेगा। हाँ, चलो आप हाथ उठाओ ना, आप डरे वाला। हाँ कुछ पूछिए, अरे जो भी मन में है कुछ पूछिए ना। मैं तो चले जाएंगे 1-2 दिन के बाद, उस बाद में रहेंगे नहीं, इससे पूछेंगे हिंदी उर्दू में, पूछो कुछ मन में हो सकता है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी चीज़ है। डॉक्यूमेंट के लिए आए हैं, हमें जल्दी डॉक्यूमेंट मिल जाए ताकि हम काम कर सकें। हाँ तो ठीक है। मैं यहाँ का देश नहीं हूँ, मैं समझ सकता है ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें हम 2 चीज़ आपको समझाएंगे। एक तो मैंने बोला YouTube, ठीक है? तो YouTube में जैसे ये YouTube वाला चैनल है ना, तो हो सकता है वो एक दिन में किसी को यहाँ पकड़ लिया, वो कोई जुगाड़ से डॉक्यूमेंट बना दिया, उसका YouTube चैनल सुन करके आपको ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है? दूसरी चीज़ है, आजकल एक नया चीज़ है AI, ChatGPT, मुफ्त। उसमें ठीक है, आपको जो प्रश्न है इतना आसान नहीं है क्योंकि वो सरकार से मतलब है, लेकिन कभी कभी ChatGPT ऐसे ज्ञान देता है कि आप सोच भी नहीं सकता है बाकी लोग से, ठीक है? आप डिपेंड करते हैं आप क्या प्रश्न पूछ सकता है। So the question he's asking is about documents, and what I'm explaining to him is there are 2 ways he can facilitate his journey. The first is to listen to a YouTuber like this gentleman, and he'll hear a story of another refugee somewhere in Europe who's managed through the process to get some documents in a good way. The second one is using AI and ChatGPT. तो मैं अपना कहानी बताता है। मेरे पास मैं अभी 63 years हूँ, ठीक है? मैं काफ़ी बुरा है, ठीक है? मेरे पास एक बीमारी आ गई, कैंसर, बहुत बड़ा बीमारी है, और उसमें हमको एक ऑपरेशन करना था। तो मैंने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर 17 साल का है, बहुत पैसा लेता है। हमको बोला ऑस्ट्रेलिया में इसका इलाज नहीं होगा, आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, ठीक है? अब अमेरिका जाओ, इतना पैसा खर्च करो, हॉस्पिटल, होटल, ये क्या करेगा? फिर मैंने एक वो प्रोफेसर जो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी चलाता है सिडनी में, उनसे ये प्रश्न पूछा, वही जवाब दिया। फिर हम ChatGPT से प्रश्न पूछा बढ़िया से, वो मुझे बताया है कि मेलबर्न, आप पता नहीं आप लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानता है, तो मेलबर्न में दुनिया का नंबर 1 प्रोफेसर है। हाँ, मैं अमेरिका में जाना, ऑपरेशन करना, कितना पैसा खर्च रहा, क्या बाप रे बाप। और ये तो मैंने उसको ईमेल भेज दिया, उसका जवाब मिला। तो ChatGPT क्या किया, जो डॉक्टर्स लोग हैं ना, वो लोग एक पुस्तक लिखता है हर महीना अपना नया चीज़ का। AI जो है ना, उसको 5-10 सेकंड के अंदर में जो सबसे पहले वाला है 1900 से आज तक सब पढ़ा है, और जहाँ उसका जवाब था हमको दे दिया। तो ये चीज़ बहुत शक्तिशाली है। और अंत में आपको विदेशों में जीतना है तो आपको जुगाड़ इस्तेमाल करना पड़ा, और जुगाड़ जब आप इस्तेमाल करेंगे 2-3 नियम हैं। एक, सामने वाला के साथ गुस्सा नहीं होना, गुस्सा है तो छुपा के रखना, मुस्कुरा, वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़, इसके बारे में पहले से जानकारी प्राप्त करो। जब भी आप कोई भी कागज वाला काम करेंगे ना,
क्योंकि अंत में क्या होता है ना, ये लोग भी फंस जाता है, क्योंकि हो सकता है आपके जो नाम है ना वो 2-3 डॉक्यूमेंट में अलग अलग स्पेलिंग है, ये होता है। कभी कभी पूरा नाम होता है, कभी इनिशियल होता है, कभी जन्म के दिन में उसमें कुछ अलग है, उसमें कुछ अलग है। तो वो भी कोशिश करना है कि ये पहले भी ठीक करना है, वो ठीक नहीं कर सकता है, वो भी और मुश्किल हो जाएगा। तो चलो एक दूसरा ओ कौन, चलो अरे वाह, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सब भाइयों को जो यहाँ पे हमें बुलाया और हमारी बात सुनी, हम आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम यहाँ पे आए हैं परदेसी हैं, पाकिस्तान में हालात कुछ अच्छे नहीं थे और वहाँ से हम हिजरत करके इन मुल्कों में आए। काफ़ी मुल्कों में से गुज़र के हम यहाँ पे आए और तुर्की में हम लीगल नहीं हो सके, फिर वहाँ से हमें यूनान आना पड़ा कि वहाँ पे हम लीगल हो सकेंगे, लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हो सके। तो वहाँ से हमने हिजरत की, फिर यहाँ इटालिया का हमने सुना कि ये बहुत अच्छा मुल्क है और यहाँ पे इंसान लीगल तरीके से काम कर सकता है। तो हम इसीलिए पिछले मुल्क छोड़ के आए, पैसे तो हम वहाँ पे भी कमा रहे थे, काम कर रहे थे, तो हम इसलिए यहाँ पे आए इस इटालिया में कि यहाँ से इंसान लीगल तरीके से काम कर सकता है। तो यहाँ भी हमें 7-8 महीने हो गए आए हुए, तो अभी तक हमें कुछ मिले और कुछ नहीं मिले। तो जो जिसकी पीछे फैमिली है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो कैसे इसको मैनेज करेंगे? या अगर हमें ये इधर कैंपों में बिठाया कर रखेंगे तो फिर हम इसको कैसे मैनेज करें? बहुत मुश्किल होता है। इसके बारे में हमारा ख्याल कीजिए और हमें कहीं पे काम भी मिल जाए तो हम वो काम भी करेंगे, जो भी काम मिल जाए। लेकिन हम कुछ ये लड़के हैं, ये सब जो है कुछ ना कुछ काम जानते हैं, ठीक है? तो आपसे गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए। So I'll translate it. Alaikum assalam. So now I'll translate the question that he just asked. He first said, thank you very, very much for coming here, interacting with us, taking the time out. It's very kind of you to spend time with us and talk to us about our problems and our issues on this special day of World Refugee Day. The problems that he faces and all of everybody here faces is that when they left their country, they were given certain expectations. So they went to one country. Then they found that country doesn't help them. Then they went to another country and that country doesn't help them. Then they went to another country and that country doesn't help them. Finally, they're here on this beautiful island with all these beautiful people, but they're still trying to work out what they're supposed to do because they have their family and everybody at home, and they're still trying to get their act together so that they can contribute. And all of them have their own personal skill sets. So, and it's a difficult question. There's no easy answers to these questions, but I'll just now, in a language that he understands, just give him some suggestions about how he himself on this journey and he can help others on this journey. तो एक तो आप समझ सकते हैं ना कि अगर वो जो YouTube वाला बाबू है यहाँ पर, क्या YouTube चैनल है आपका? हाँ, आप सोचो अगर ये YouTube चैनल आप पहले पाकिस्तान में दिखा था ना, तो इतना देश बग करके नहीं होना पड़ता है। और असली बात ये हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे, लेकिन असली बात यहाँ 2 साल से सरकार बन गई है ना, तो यहाँ कुछ मुश्किल हो गई। यहाँ का जो अगल बगल जो साथी है ना, वो सब अच्छा इंसान है, वो आपको मदद करना चाहता है, लेकिन ऊपर से सरकार नहीं आ। तो आपके लिए तो यहाँ है, आप रो सकता है, एक होता है ना। So there's a story about there's a glass with half water, full and half empty. I can tell you all day that my glass is half empty, or I can keep looking and finding out why it's half full. आप यहाँ तक पहुँच गया ना, ये तो बहुत बड़ा बात है। बहुत सारे लोग हैं आपके देश में, अफगानिस्तान में, बहुत पहुँच नहीं पाया, वहाँ से निकल नहीं सका। तो आपको सीढ़ी से ऊपर जाना, और सामने में मैंने आपको 2 चीज़ बताया ना, एक तो वो सोशल मीडिया वाला, और ये आपको खोजना है। क्योंकि क्या है ना, हो सकता है यहाँ का सरकार बन गया, नया नियम आ गया, आपको मदद किया, हो सकता है कोई दूसरा अगल बगल देश है, लेकिन
थकना नहीं, मतलब इच्छा होना चाहिए, दम होना चाहिए अंदर में ना मुझे चलना है, मुझे आगे बढ़ना है ना, ये बहुत जरूरी है। अब सोचो, जब मैं when I was 24 years I was deported. I'm the opposite. When I was 24 years of age, I was deported from India back to Australia. And basically, I'm an unskilled white person going to Australia with no skills. Okay? मैं जब 24 years का था ना, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमको निकाल दिया, ऐसा ही था, फेंक दिया। और मैं ऑस्ट्रेलिया आकर के कोई स्किल सेट नहीं था, तो मैंने 2-3 चीज़ सीखा जो बहुत, अब मैं आप लोग को वर्क के बारे में समझाना। Now I'm going to give them some tips about how they should progress with work. सबसे पहले, जब भी आप कहाँ भी कभी भी मौका मिल जाएगा काम के लिए, सबसे पहला प्रश्न सब बोलते हैं कि कितना पैसा मिल रहा है। नहीं, उसमें एक और प्रश्न आ जाता है, कुछ सीखने का मौका मिल रहा है क्या? और जब तक आपको सीखने का मौका मिल रहा है ना, और पैसा भी ठीक नहीं है ना, हाँ, फिर भी काम करते रहो। जैसा आपको लगता है कि आप सब कुछ सीख गए, फिर नौकरी चेंज करना चाहिए। So I was just explaining them one of the importances of when you work is that don't just think about the payment, but also think if you are learning. Quite often you are given an opportunity in a country like this where you might work somewhere, it could be a kitchen or whatever, and you learn to upskill. So it's really important to value any knowledge that the others would like to teach you. एक तो वो हो गया। दूसरा हम आपको बताना चाहता है जो मेरे जीवन में बहुत मदद किया। हमने 16 साल की उम्र में, अब सोचा कोई, ठीक है, आप लोग मॉस में, मैं मंदिर में था ना, कुछ बिजनेस क्लास लोग अपने 16 साल का बच्चा हिंदुस्तान में कुछ सिखाता है। हर महीना में आप कितना पैसा कमाता है उससे मतलब नहीं है, हाथ में कितना रह जाता है वही उससे मतलब है, ये आगे की बात है। और उसके बाद ये पैसे के साथ क्या करता है। So I was explaining to them that when I was 16 in the temple in India, some business people who were devotees, they explained to me that they tell their son at 16, don't ever tell me how much you earn. I don't want to know. What I want to know is at the end of the month, once you're working okay, how much can you save? And then what do you do with it? तो ये हम इस्तेमाल करके, मैं आपको बताना चाहता है कि मैंने जब रेस्टोरेंट चलाया था ऑस्ट्रेलिया में, मेरे साथ थाई, बर्मीज, लाओस, कभी कभी नेपाली, एक तो हिंदुस्तानी, मैं सबको एक ही बात बोलता था, यहाँ थोड़ा पैसे बनाता है ना, कोई समझदार वाला रिश्तेदार है, ऐसा नहीं कोई समझदार वाला रिश्तेदार है घर में, वहाँ जाकर के छोटे छोटे कमरा बनाते बहुत सुंदर। और कभी आप जब वापस जाएंगे ना, आपको काम नहीं, आपकी किराए काम किराए से मिल सकता है। नेपाल से कितने लोग हम जानता है, बहुत गरीब से वहाँ से चला, अब वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल काम किया, पैसे वापस भेजा, आराम से वहाँ पर रह रहा है नेपाल में। क्यों? और मैंने ये भी बोला कि जब छोटे सा कमरा बना रहा है ना, एकदम सुंदर, तब एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं है, लोग उसी में घुसना, दूसरे वाले में घुसना नहीं चाहता है ना, तो ये चीज़ आगे की बात है। So I was just explaining to them that sometimes if you do earn, sometimes if you have a very good family member and they're responsible, you can send a little bit of money back home to them, and then they can invest it properly in the land, build small rooms for other people, so that when you come home, even if you don't have a skill set there, you have a source of income. तो ये सब चीज़ सुनने में आसान है, करने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप करेगा, आप मेरा जैसा कुर्सी में बैठ के, मैं दुनिया में घूमता रहता है, मेरे दोनों छोटे भाई हमसे ज़्यादा पैसा कमाता है, फिर भी दोनों परेशान हैं, उनके पास पैसा नहीं है। I'm just telling them, I have 2 younger brothers. They've always earned a lot more money than me, and they're always in problem. I earned less, but I valued and I spent my money wisely. तो मैं अच्छा से रह सकता है ना, अब समझ गए? अच्छा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न, इतना दुखी चेहरा, इतना गंभीर बात कर रहा है, चलो कोई किसको, चलो हरा रंग, हाँ कुछ पूछो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ पे बैठे हुए तमाम मुसलमान भाई और जो भी यहाँ पे साथी हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे एक नीड्स चाहिए जो यहाँ के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है। हम तो मुश्किलात काट के यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जो है ना डॉक्यूमेंट्स का जो काम है बहुत स्लो हो रहा है, ये भाई साहब ने पहले बात कर दी।
दूसरा जो बात है कि यहाँ पे हमारे कैब में नेटवर्क का भी बहुत इशू है। यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करो तो वो घंटों लग जाते हैं, खुलता ही नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है, शायद गांव का एरिया है, नेटवर्क हमने काफ़ी चेंज किए, सिम्स वगैरह भी की, यहाँ पे वाईफाई पे लगा हुआ है नेटवर्क, वो भी सही नहीं वर्क कर रहा। और दूसरा यहाँ पे जो है ना, हमें सबसे बड़ा जो मसला है वो लैंग्वेज का है। यहाँ पे लैंग्वेज की क्लासेस हमारी होनी चाहिए, ये रिक्वेस्ट करता हूँ। पहले हुआ करती थी, अभी जब से हम यहाँ पे आए हैं काफ़ी सारे लोग, किसी को यहाँ पे वो लैंग्वेज, मैं सर से रिक्वेस्ट हम्बली करता हूँ कि ये क्लासेस दोबारा शुरू की जाए। So one of the questions he's just asked, which is a really interesting one, is about learning languages. Okay, and okay, they would love to request you that they could be taught languages. So I'm going to give them some tips on how to learn language without being taught. Okay. मैंने एक अपने जीवन में वो भी भाषा आता है, और मैंने कोई हमको पढ़ाई नहीं करा है, और मैं कैसे सीखा? मैं उससे दोस्ती किया है जो मेरा भाषा आता नहीं है, और मैं वो करते थे, वो करता रहता है, और 6 महीने के अंदर में मैं बोलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई इटालियन दोस्त है और उनको आपको मालूम है कि वो बिल्कुल एक भी शब्द अंग्रेजी नहीं जानता है, ठीक है, उससे वो ज़रा दोस्ती करो, बातचीत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा है, ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको जब थोड़ा सा उसका सीध हिलाना, उच्चारण, ये सब चीज़ बोलने का दंग मिल जाता है ना, तो वो भी आपसे बहुत खुशी से बात करेगा। तो मैं समझ सकता है कि संसार में समझाता है कि पढ़ाई से होता है, लेकिन मैं अब बॉलीवुड का बात बताता है वो मेरा, मुझे काफ़ी साल लगा। मैं बहुत सारा अंग्रेज है जो हिंदी उर्दू यूनिवर्सिटी में सीखता है, वो पुस्तक भी लिखता है और पढ़ लेता है। वो जब खड़ा हो जाता है और बात करता है ना, गाँव का लोग उसका एक भी बात समझ में नहीं आता। मेरा ठीक उल्टा, क्यों? मैं एकदम देहाती लोग के साथ घुस करके, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, मैं भी हिंदी उर्दू नहीं बोल पाता है, हम बात करते 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 सीख लिया। अब समझ गए मेरी बात? और आप क्या है ना, हम आपको बता रहे हैं, मैं आपको एकदम, मैं बड़ा बड़ा फिल्म शूटिंग सेट में गया है ना, उसका जो पूरा टीम है जो शूट करा है ना, वो सलमान खान, आमिर खान, सबके साथ काम किया है। हम जब कुछ बोला, वो मुंह खोला ना, पूरा सेट जैसे लगा कि कोई घोड़ा भूत निकल गया, ये क्या निकल रहा है उसको मुंह से। तो ये चीज़ याद रखिए। एक दूसरी चीज़ है, जरूर हमको पूरा विश्वास है, और ये यूट्यूब वाला बाबू को बोल दो, वो खोज देगा, ये समझ गए। इंटरनेट वाला प्रॉब्लम अलग है, जरूर कुछ इंटरनेट यूट्यूबर्स होगा जो आपको कुछ कुछ सिखलाएगा। आजकल दुनिया ऐसी हो गया ना कि आप नियम बनाएंगे कि हद से पहले आधा घंटा, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप यूट्यूब में इटालियन सुन लो, गाना सुन लो, कुछ भी सुन लो, तो आपको क्योंकि क्या होता है ना, मन में एक दिन में कुछ चला जाता है और फिर आपको बोलना शुरू हो जाता है। So I was explaining to them that sometimes if you're not given the facility of a teacher, the way I learned my Hindi is very different from everybody else. There are professors, English professors who studied Urdu, who studied Hindi, and but when they speak, it's like a textbook, a book language, and therefore they're not understood by the masses. I always have a principle of not learning that way, but by finding somebody who doesn't speak my language, befriending them, talking to them non-stop, and letting them talk to me non-stop, and gradually you find that you just click onto it. You'll be amazed. आप लोग को अमेजमेंट लगेगा कि एक दो छोटे छोटे शब्द होता है ना, हेलो, मुझे इटाली में आता है, लेकिन आपको मालूम है अंग्रेजी में, जैसे अंग्रेजी में हेलो, गुड बाय, ये सब चीज़ ये धीरे धीरे धीरे, और आपको कोशिश करना है कुछ दिन के बाद कि हर दिन में 2-3 नए शब्द, तो फिर सखा आपको मदद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ेगा। क्योंकि जिस लड़के यहाँ पर सामने में अपने आप से इटालियन सीख लिया ना, तो कोई जुगा ये सब यहाँ आपको मदद करने के तैयार है। I'm saying to them, whichever one of you here has managed just by themselves through interaction, learning, and listening to YouTube to pick up Italian and become fluent, automatically the society here will find out a way to help you and do things. ठीक है?
करी प्रश्न आप किसको पूछेंगे? सबसे दुखी चेहरा किसका? कहाँ है सबसे? अरे ये टोपी वाला कौन है? टोपी वाला कौन सा दुनिया में रह रहा है? चलो नहीं, आपको शर्म आ रहा है? हाँ? नहीं, एकदम शर्म आ रहा है। वो कोई दूसरा, कोई नेपाली बाबा ये सामने, ओके यू सबसे स्मार्ट टेक्ने वाला है ना? हाँ। आप ऑस्ट्रेलिया से इंडिया मूव क्यों किए? जितना अंग्रेज ये आप लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तो अलग बात है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जितना अंग्रेज जो पहले हिंदुस्तान जाता है और फिर वो जाता है और फिर वो जाता है, एक ही चीज़ है, योगा। अब सोचो मेरा उम्र क्या है, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मुझे बीमारी कम होता है, मैं 7 दिन खुशी में रहता है, सोने में कोई टेंशन नहीं है, वो सारा चीज़ हम योगा का वजह से है। तो वहाँ पर सीख करके और वापस जाता है, तो वो सबसे पहले दवा है। उसके बाद जब एक देश जाता है जहाँ हर एक व्यक्ति का अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, अलग धर्म है, हर एक व्यक्ति का, खाली मुसलमान के नहीं, वो भी लोग हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। हमारे लिए ये चीज़ हमको बहुत पसंद है, हाँ? ठीक है? अब थोड़ा मुस्कुराओ, मेरा क्या है? आप कहाँ पहुँचा? सचमुच में अगर हम बदलाएं, ये जो काला टोपी, आप प्रश्न पूछिए ना। आप ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए हैं, तो आपने वहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर क्या सीखा है? So I'll just translate the last question first. The last question was, why did I bother as a young 13-year-old from Australia go to India, and why do foreigners even bother going to a country like India? And I said the first of the door is yoga. We go, we learn, we love it, and that just keeps bringing us back. And then once we immerse ourselves in the broader culture, there's so many different things that entrance us, we get totally involved. So the next question is really interesting. What did I learn from India? I learned life skills, and I'll explain this in Hindi. आप सोचो, मेरे जितना जो रिश्तेदार है ऑस्ट्रेलिया में, सब हमसे ज़्यादा पैसा कमाया है, ठीक है? सब हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन मैं मज़े में रह रहा है, मेरा घर उससे भी ज़्यादा दाम है, और मैं पूरा दुनिया घूमता रहता है। ये मैं हिंदुस्तान से, क्योंकि मैंने अपना, उसको बोलता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन उर्दू में क्या बोलेगा? अपना नियम, दूसरा का नियम नहीं है, उसको क्या बोलेगा? सेल्फ डिसिप्लिन कुछ है उर्दू हिंदी में, क्या बोलेगा? नियम, ठीक है, अपना पर नियम है। So one of the things I learned from India was self discipline. I'll explain first in Hindi and then we'll speak in English. तो एक मैंने बहुत बड़ा चीज़ देखा है ना, कि बहुत सारा लोग बोलता है कि मैं इस भगवान को मांगता है, मैं उस धर्म का है, मैं शराब नहीं पीता है, मैं ये नहीं करता है, मैं ये नहीं करता है, लेकिन दरवाजे बंद, सब कुछ मजा नहीं कर रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है जो सचमुच में आप करना चाहता है वही आप करता है। हम जल्दी उठना चाहते हैं सवेरे, मैं उठ सकता है। मैं अपना आधा घंटा निकालना चाहता है पढ़ाई के लिए, यूट्यूब में सीखने के लिए, मैं कर सकता है। तो ये जो चीज़ मैंने हिंदुस्तान से सीखा है, ये बहुत मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस दुनिया में रखा गया है सीखने के लिए। जिस दिन आपके दिमाग में सीखना बंद, the day you stop wanting to learn, life loses its meaning. थोड़ा मतलब अगर आप इंटरेस्ट नहीं है कुछ और सीखने के लिए, और असली क्या होता है ना, आप लोग लगा नहीं, लेकिन ये सबको लगा है विदेशों में और पाकिस्तान और ये सब जगह में जो अमीर लोग हैं, अपना बच्चे को इतना पढ़ाई कराता है, आप दिमाग में कुछ डाल नहीं सकता है। Normally in the Western system, if you go up to a PhD or a master's or a bachelor's, you learn so much, you get to learn so much that you come to one point where you just don't want to learn anymore, and that makes life different. So that's something for me was a gift. The second thing, storytelling. आप लोग बाहुबली देखा है कि नहीं?
हाँ, मैं सारा बाहुबली सेट से मिला है, वो भी गोवा में। उसके डायरेक्टर का इंटरव्यू करा। So I'm speaking about a very amazing Telugu film. There's also in English called Bahubali. It's the equivalent of Lord of the Rings, Indian subcontinent. तो वो खुद कहता है कि मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं स्टोरी टेलर हूँ। तो मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं भी जब भी किसी को कुछ समझाता है, कहानी में समझाता है। और लोग दुनिया में कहानी सुनने में सबसे खुशी है। आप जब छोटा बच्चा रखता है ना, उसके पूरे दिन में सबसे खुश समय कब है? जब आप छोटा कहानी बताता है उसको। बड़ा लोग को भी है, लेकिन उनको मालूम नहीं है। वो मैंने ये दूसरा चीज भी सीखा है। The third thing that I learned is to appreciate what I have. You see, when you live in a beautiful country and it's very clean and you have all the facilities, you don't appreciate as much as when you've seen others who don't have. आप लोग ने ऐसी देखा है आपके देश में, जो गरीब है, जो मुश्किल से रह रहा है, हर एक दिन में उसको, मैंने बांग्लादेश में देखा है कि चपाती और नमक वही खाता है रिक्शा वाला। ये क्या जीवन है, कितना मुश्किल है कि नहीं? तो ये देख करके अगर आपका मन ठीक है, if you have the right attitude, you can appreciate that whatever you now have in front of you, you are very fortunate, as opposed to so many other people in need from your own country. तो ये तीन चीज, these are the three things मैं आपको थोड़ा बहुत समझाया। तो ठीक है, लगता है, दिखता है कि सब बड़ा लोग कैसे दिखता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना, मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप कोई भी हिंदुस्तान का, कोई भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बच्चा वहाँ पूछेंगे कि ये मेरा तकलीफ है यहाँ पर, हम आपके जगह में रहेंगे वहाँ, आप यहाँ पर छुट रह जाएंगे। है कि नहीं? हा? और जीवन में तकलीफ होता है। In life we have problems. It's only through working through our problems that we become a better person. हम लोग अपना तकलीफ सामने में उससे मैनेज करके आगे बढ़ते हैं जीवन में। अभी 100 साल पहले अगर आपको ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, you went 150 years before, लोग इतना आसान नहीं रहता है। आप लोग ने सुना है ना, पेनिसिलिन एक दवाई है ना, उसके इन्वेंशन से पहले मेरा पापा बड़ा डॉक्टर था, वो हमको समझाता था कि 45 years के बाद जनरली आदमी चले जाता है दुनिया से, 25 और 45। हम लोग 100 साल तक जीवन जीता है, क्या दुनिया में हम लोग आ गए ना, फिर भी लोग बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, तो मैं सिर्फ ये बोल रहा है ना, अंदर में थोड़ा सा भाव है और कोशिश करो कि हाथ भी थोड़ा मुस्कुराए। ये बहुत जरूरी है बाबू, आप नहीं मुस्कुरा रहे तो बाकी दुनिया आपके साथ नहीं मुस्कुराती। I just told them that it's important to have self-confidence and that every day you must ask yourself to smile. If you can't smile, doesn't matter what people will do, how people will help you, you can't go forward. तो ठीक है, मुझे लगता है बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग तो नींद आ रहा है, ये सब हो रहा है, कोई बात नहीं। Okay, thank you. It's lovely meeting all of you. और मैं, आप लोग जानते हैं मैं सोशल मीडिया में हूँ, मैं हमको आप लोग तो उर्दू स्क्रिप्ट में लिखते हैं ना, हमको बच्चे लोग हिंदुस्तान में देवनागरी में लिखते हैं चेहरा किताब। चेहरा किताब क्या है? चेहरा किताब क्या है? चेहरा किताब किसी को मालूम है? चेहरा किताब क्या है? फेसबुक। मैं उसमें हो, इंस्टाग्राम में हो, सब में है। हाँ, आप कनेक्शन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। So I'm just telling them that I'm also on social media. They can always reach out to me if they want, and I'm always there. And that's the amazing thing. We can be connected with everyone. हम लोग सबके साथ connection कर सकते हैं। अपना रिश्तेदार भी वहाँ, हाँ, ठीक है। और मैं जो थोड़ा कष्ट वाला 12 प्रश्न जो पूछा है ना, वो बाद में चुपचाप उन लोग से बात करेंगे इंटरनेट पर, ठीक है? मैं भी कुछ आपकी तरफ से बोलूँ, ठीक है? धन्यवाद, शुक्रिया। Namaste.